Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and healthy at your home. Welcome back to our English class, children. Okay, in our previous class, we did question answers and word meanings of lesson 2, Rigi Tiki and Nag. Today, we will do its book exercise. First, we will start from true and false. Now, Rigi Tiki wanted to kill Chuchundar. क्या Rigi Tiki Chuchundar को मारना चाहता था? It's false, children. No. Then we have Nag and Nagina were whispering in Teddy's bedroom. Teddy के bedroom में दोनों बात कर रहे थे. That's also false. Then we have Nagina had laid eggs in the cabbage patch. No, children. Nagina ने melon bed patch में eggs दिए थे, not in that. Now fourth we have Nag was coiled around the bath. क्या वो बाथ के around उसने गोल गोल घूम गया था? No, children. वो जग के around था जिससे हम वाटर भरते थे. So this is also false. Now we have Rigi Tiki bit Nag's head. Rigi Tiki ने नाग के हेड पे बाइट किया था and it's true. Then we have the big man shot Nag. This is also true. Now come to our question. Now we will do its book exercise given on page number 22, our vocab exercise, vocabulary. We have to match the words from the phrase. Means जिसे आप कहते हैं ना, किसी हम एक पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड बना देते हैं किसी आलसी पर्सन के लिए, तो आलसी को आलसी ना बोल के, लेजी पर्सन ना बोल के उनके लिए एक स्पेशल वर्ड बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल काउच पोटैटो. Why we say them couch potato? Because couch it's a type of sofa. सारे दिन जो lazy person होते हैं they like to sit whole day, right? और वो mostly we have seen like a whole day we sit we become like a potato, fat हो जाते हैं हम. So particular name is given to them couch potato. So likewise हमें ऐसे ही words we have to match with these phrases. Means उन meaning same होना चाहिए. Means उन वर्ड्स का मीनिंग शुड मैच द फ्रेजेस. नाउ आवर फर्स्ट इज अ टॉकेटिव पर्सन. टॉकेटिव पर्सन को वी स्पीक चैटर बॉक्स. हम क्या बोलते हैं? चैटर बॉक्स. सो यू कैन मैच वन विथ ई. वन विथ ई, चैटर बॉक्स. दिस इज आवर वोकैबुलरी एक्सरसाइज. Vocab exercise. Then we have second, lazy person. So lazy person, as I said, couch potato. Third we have grandmother, और अक्सर granny और nanny in short we speak to them. So it's a gran or nan in short. It means grandmother only, granny or nanny. Got to को we always see got it, तो हम उसको ऐसे होता है गोटा, and it's B. Then we have a child. Child को we speak kid also, as you all know, you might be knowing. Kid बोलते हम. And then mother we say mom. This also you all might be knowing. आप सब अच्छे से जानते हो. Okay. Now we will do our grammar exercise given on page 23. Page 20. This is page 22, and this was given on page 21. Now this exercise page 23 exercise pronouns. Children,
What are pronouns? Pronoun, the words which we use in place of noun. वो वर्ड्स जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस. नाउ फॉर एग्जाम्पल, यू ऑलवेज नेवर स्पीक, जब आप अपने बारे में बात करते हैं, यू ऑलवेज नेवर स्पीक योर नेम कि फॉर एग्जाम्पल आपका नाम रोहित है, रोहित को ये चाहिए, रोहित को ये अच्छा लगता है. नो, यू स्पीक मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है. लाइक whenever you talk about your friend, you are talking to your friend or about your friend, you needn't always speak his name. आप हर बार तो उसका नेम यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल उसका नाम मोहित है, मोहित आप एक बार बोल दोगे मोहित डू दिस, मोहित डू दिस, मोहित इज डूइंग, मोहित यू सेड. आप हर बार नहीं कहते, आप उसको कहते यू सेड मी, कम हेयर, यू कम हेयर, यू हैव डन दिस, यू डू दिस. और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो ही शी लगा देते हैं. और वेन एवर वी टॉक अबाउट एनिमल्स, बर्ड्स, तो हम उनके लिए इट यूज करते हैं. एंड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो हम उनके लिए इट यूज करते हैं. मीन्स आप हर बार उनका नेम नहीं लेते हो. तो दीज वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस. मीन्स नेम्स की जगह. नाउ अब नेम्स की जगह आप क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो? ही, शी, इट, दे, योर्स, माइन, मी, I, you, they. So these are pronouns. Now इसी में आते हैं relative pronouns. Pronouns are of 7 types, children, but that will come in your grammar portion. For now, here are simple pronouns and then we have relative pronouns. First we will do simple pronouns, then it will be easy for you to do the exercise about relative pronouns. Once we will do our pronouns, तो आपको relative pronouns की exercise करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी. So better first we will do our exercise of pronouns. Now see children, what is pronoun and then we will do its exercise relative pronoun. Now see, I am sure I left my purse here. अब पर्स के लिए बोल रहे हैं तो I cannot find. मैंने कहा था नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स वी ऑलवेज यूज द वर्ड इट. तो आप यूज करेंगे इट. देन वी हैव डोंट लुक फॉर राजेश एंड देव. राजेश और देव के लिए मत ढूंढो. अब दीज आर 2 persons, so we will use they. अगर एक पर्सन होता तो चिल्ड्रन ही यूज करते. टीना लुक सो प्लीज लाइक दिस. शी इज अ सिंगल पर्सन, सो वी विल राइट शी. Now we have Karan missed the football trials today. Now as I said पहले 2 थे तो we used they. Now only Karan is written, so we will write he. Are आपसे पूछ रहे हैं, so are you. Two of my best friends have left school. I really, अब 2 है, so more than 1 है. I really miss them. I wonder where Reena is. I have something important to tell her. Okay children, now come to our relative pronoun exercise. Now children, relative pronouns means in the same sentence noun भी है और जिसके लिए आप pronoun यूज करोगे that is also in the same sentence. सेम उसी noun के लिए आप उसी sentence में you will use pronoun. So they are called relative pronoun. means वो आप उसी noun से in the same sentence they are relating. उसी से relate कर रहे हैं, उसी के लिए यूज हुए हैं. That's why they are called relative pronoun. Now
We will do its exercise. Now see children, and you have to match these also. ये हमें एग्जैक्ट उनसे मैच करने हैं, and we have to use the relative pronoun for them. Now our first is this is the house. ये वो घर है जो जैस्मिन ने बनाया था. तो we will use, इससे हम डी से मैच करेंगे, जो that Jasmine built. Then we have these are the pens dash Rohan bought at the shop. ये वो पेन है. Which Rohan bought from the shop. Third we have I like people. कौन से people अच्छे लगते हैं? जो honest होते हैं. Who are honest. Children, we always speak honest. हम honest कभी नहीं बोलते. We always speak honest. He is a writer. वो एक लेखक है जिसकी रिसेंट बुक, अभी की बुक लिखी हुई सबसे अच्छी बेस्ट सेलर थी. तो उसका लिखेंगे whose. Whose recent book. Then we have the teacher gave candies. टीचर ने वो कैंडीज दी जो बहुत सॉफ्ट थी. That were very soft. This is exercise is also done, children. Now our next exercise is articles. Now children, articles, we have three articles, a and the. Now first main difference between a and the है, a और n we always use for a single thing. एक के लिए, सिंगुलर के लिए हम a और n यूज करते हैं. the हम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, हम the दोनों के आगे लगा सकते हैं, सिंगुलर के आगे भी, प्लूरल के आगे भी. जबकि हम a और n वी नेवर यूज बिफोर प्लूरल. हम a और n प्लूरल के लिए कभी भी यूज नहीं करते. हम a और n वी ऑलवेज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स एंड द वी यूज फॉर प्लूरल एज वेल एज सिंगुलर नाउन्स. हम द बॉयज भी कह सकते हैं एंड द बॉय भी कह सकते हैं. और a और n हम हमेशा सिंगुलर के आगे यूज करते हैं. फर्स्ट मेन डिफरेंस. सेकेंड चिल्ड्रन, difference between a and the. I said you about vowels, right? And I told you a simple thing how you can learn by vowels. 5 with your hand. आप अपने hand से हमेशा याद रख सकते हैं. There are 5 vowels, a, e, i, o and u. How many vowels? 5. आप हमेशा अपने hand से याद रखिएगा. From a to z are जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं उसमें से हमने 5 अल्फाबेट्स निकाले जिन्हें हम क्या बोलते हैं? vowels. A, E, I, O and U. 5 vowels. रेस्ट को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स. नाउ इन 5 vowels से A, E, I, O, U,
इनसे कोई भी नाउन जो इनसे शुरू होता है उसके आगे भी ऑलवेज यूज एंड इफ इट इज सिंगुलर, कंडीशन ये है कि वो सिंगुलर होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, ए और एन हम हमेशा सिंगुलर के आगे यूज करते हैं। सो AEION, इनसे कोई भी नाउन स्टार्ट होता है उसके आगे हम हमेशा क्या यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट्स के आगे ए। नाउ फॉर एग्जांपल एरोप्लेन, एलिफेंट, आइसक्रीम, ऑरेंज, अम्ब्रेला, राइट चिल्ड्रन? एंड द वी यूज फॉर सम पर्टिकुलर थिंग, जब हम किसी खास चीज के लिए बोल रहे हैं, या एक सेंटेंस में फॉर एग्जांपल आई मेट अ बॉय टुडे और आई मेट अ गर्ल टुडे, आज मैं एक लड़की से मिली, वो लड़की बहुत अच्छी थी। अब मैंने कहा कि मैं एक लड़की से मिली, सो आई यूज द वर्ड ए। फिर मैं कह रही हूँ कि मैं फिर उसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ कि वो बहुत अच्छी थी। सो एट सेकेंड टाइम आई विल यूज द गर्ल वॉज वेरी नाइस। नाउ सी चिल्ड्रन, likewise here are this exercise is there, we will do it now. See, first है Relina had bought dash sofa from dash store. Relina had bought, अब हैड यूज किया है तो हम इसमें ए यूज करेंगे, हैड बॉट अ सोफा। अ सोफा फ्रॉम अ फर्नीचर स्टोर। अगर चिल्ड्रन इस सेंटेंस में अगर हम इधर द लगाते तो इधर भी द लगाते, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर सोफे और एक पर्टिकुलर शॉप के बारे में बात कर रहे हैं। बट इन्होंने कहा अगर इसमें हैड नहीं आता, रेलिना बॉट द सोफा फ्रॉम अ फर्नीचर स्टोर। फिर हम अगर हैड नहीं होता तो हम इधर द लगाते कि हम उस सोफे की पर्टिकुलर सोफे के बारे में बात करें। हमने देखा है रेलिना ने एक सोफा खरीदा एक फर्नीचर शॉप से। नाउ सी, डैश प्रिंस लिव इन डैश पैलेस इन टोक्यो। अब हम एक ऐसे प्रिंस की बात करें जो टोक्यो में रहता था। So we will use the word the. First word है, so we will write the word capital. The prince lived in the palace in Tokyo. उस पैलेस में रहता था जो टोक्यो में है। Now third we have, they decided to go for the picnic. The picnic on the weekend. अब ए नहीं आएगा क्योंकि वीकेंड में सैटरडे संडे दोनों आते हैं, तो एक डे तो है नहीं चिल्ड्रन। सो हम वीकेंड के बारे में बात कर रहे हैं। डैश मेयर इनॉग्रेटेड न्यू थीम पार्क। अब हम उस स्पेशल मेयर की बात कर रहे हैं, तो वी विल यूज द वर्ड द। The mayor inaugurated the new theme park. वो जो न्यू थीम पार्क है वो उस मेयर ने इनॉग्रेट किया है। एप्पल है, ए की एप्पल है, ए से स्टार्टेड है, वोवल से स्टार्ट है, सो वी विल राइट एंड। एंड एप्पल हेल्प्स टू कीप डॉक्टर अवे। द An apple a day keeps the doctor away. Owl है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, अगेन एक ही owl है, so we will write an owl hoots near. अब उसी विंडो पर वो हमेशा बोलता है, so we will write the. Okay children, now see, come to page number 25. पंचुएशन है, we have to only put the comma. कॉमा चिल्ड्रन जहां हम हल्के से कुछ सेकंड्स के लिए हम रुकते हैं। फुल स्टॉप तो मीन्स हो गया कि नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बट हमें एक पॉज लेना होता है, सो देयर वी यूज कॉमा।
जहां हम कुछ सेकंड्स के लिए रुकते हैं, देयर वी हैव टू यूज कॉमा। रिकी व्हाट आर यू डूइंग आउट हियर, तो हम ऐसे ही बोलते रिकी क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो हम कुछ सेकंड का पॉज लेते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप तो लगा नहीं सकते कि रिकी एक सेंटेंस कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, सो वी विल यूज हियर कॉमा। रिकी व्हाट आर यू डूइंग हियर, आफ्टर रिकी पुट कॉमा, देन आई एम लुकिंग आउट फॉर नाग एंड नगीना। वाई सुंदर, रिकी रिप्लाइड, हैव यू सीन देम, नो आई हैवंट। अब नो के बाद हमने नो आई हैवंट, हम कभी ऐसे नहीं बोलते नो आई हैवंट, तो नो के बाद में चिल्ड्रन full comma will come. Then we have why my friend, because Riki Tiki they might mistake me. अब here also children, because Riki Tiki के बाद में what will come, comma. They might mistake me for you and they will kill me, said Chuchundar. Chuchundar look at you. Again after Chuchundar comma will come. And this is the last comma. And I would like children here the नीचे जो ये word banks exercise दी हुई है, I want you to do it. This will enhance your vocabulary, आपकी vocabulary increase होगी। और इसके अपने एंटोनिम यानी कि ये जो वर्ड्स दिए हुए इनके विलोम शब्द, इनके ठीक ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्द इसी स्टोरी में दिए हुए हैं, तो आपको वो फाइंड करके इसमें लिखने हैं। ओके, सेफ्टी का डेंजर होता है, डेंजरस होता है, और क्राउडेड का इधर हमें अलोन मिल जाएगा, नो वन मिलेगा हमें। सो दिस वी हैव टू डू। इधर कॉन्शियस है और इधर आपका वर्ड उसमें दिया हुआ है कि नाग फेल्ट अनकॉन्शियस और रिकी टिकी वॉज अर्थ डिजी एकिंग एंड लिखा हुआ है। इधर लिखा है इन्होंने डिजी, ही वॉज डिजी एकिंग एंड फेल्ट शेकन टू पीसेस। नाउ सी अलाइव लिखा है, इधर डेड लिखा है, ही वॉज डेड। सो दीज आर द एंटोनिम्स यू हैव टू राइट फ्रॉम दिस स्टोरी। रेस्ट वी विल डिस्कस इट इन लाइव क्लास। दैट्स फॉर टुडे चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू एवरीवन।